Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Dawar Zahid and I'm a first year medical student at the Aga Khan University, and welcome to these set of videos for A levels and also pre-medical exams. Let me just quickly give you guys a breakdown of how we are going to go about these videos. So essentially I'm going to be teaching you guys A level ke concepts, because A level mein we have all of these concepts. Yes, we do have some memorization involved as well, but I think that it's better if you just understand the concept. Once you've understood the concept, there's not a lot of memorization. However, for our pre-medical exams, so these pre-medical exams are primarily, your MD-CAT, NUMS, AKU, all of these exams. इनके लिए you do have all of these, रट्टा material, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है. And the way I did it was that I did all of these things along with my A levels, so I also had really good concepts, and उन concepts के साथ I was able to link all of this ratta together, ठीक है. So for me it was really easy to connect the dots and just do it from a very conceptual point of view, and that's how I want these videos to be. Okay, so starting off with our first chapter, which is going to be the cell, and I'll go over the organelles first. So today's video is going to be about the nucleus. Okay, we'll go over that. We'll start with the A-level stuff, then we'll move on to the pre-medical exams stuff. Okay, so abhi let's just start with the nucleus, and it's going to be really simple compared to the content that you've learned from O levels. ये थोड़ा बहुत उतना ही होना, बस थोड़ी सी हमने इसमें और डिटेल डालनी है, ठीक है. सो दिस इज एसेंशियली गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर in a microscope, under a microscope, sorry, excuse my English. And the cool thing about this is that when we are doing histology is essentially the study of cells, tissues and all of these things, okay. So what we do is that this is actually the structure that in most cells we use this for identification, क्योंकि ना हमें बहुत आसानी से नज़र आ जाता है. एंड न्यूक्लियस जो होता है वो वेरी करता है. फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है. वाइट ब्लड सेल्स में डिफरेंट किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं, जिसके थ्रू वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट, एंड इट मेक्स थिंग्स रियली ईजी फॉर अस, ठीक है. एक तो मेरे पास ये चीज़ होगी. सेकेंड, ये रियली ऑब्वियस दैट द पोजिशन वेरीज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट अ प्लांट सेल, तो मेरे पास अगर मैं जल्दी से एक बहुत क्रूड ड्राइंग बनाऊँ एक प्लांट सेल की, आई हैव माई सेल वॉल, आई हैव माई सेल मेम्ब्रेन, एंड देन आई हैव माई इतना बड़ा सारा वैक्यूल, और उस वैक्यूल में कहीं एक जगह पे मेरे पास जी ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है. सो डू यू सी इट्स इन द कॉर्नर, इट्स रियली स्मॉल कंपेयर टू द वैक्यूल एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इट विल बी वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है. ओके, सो प्लांट सेल तो हमारे पास ऐसा आ गया. इफ़ यू टॉक अबाउट एन एनिमल सेल, अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी, ठीक है. हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, ठीक है. लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अगर ये एक एनिमल सेल है, रियली बेसिक सेल मेम्ब्रेन, इट विल बी ओवर हियर, ठीक है. जनरली हमारे पास वो मिडल में ही हमें वो दिखाते हैं, ठीक है. वो मिडल में क्यों होता है, व्हाई इज इट स्पेसिफिकली इन द मिडल, वी विल डिस्कस दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है. सो अभी जस्ट टॉकिंग अबाउट रियली बेसिक स्टफ, पोजीशन हो गई. इसके बाद हमारे पास, एंड दिस इज़ अ रट्टा थिंग दैट्स सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे लव गिविंग यू गाइज AS के अंदर पेपर 1 में इसके MCQs. इसका जो डायमीटर होता है दैट्स 10 to 20 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है. एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है. अब न्यूक्लियस के सेल्फ आगे काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay guys, talking about the different aspects and different components, तो जो हमारे पास पहला component आता है that's going to be my nuclear envelope. Makes sense, right? Nuclear envelope होगा सबसे पहले, and ऐसे करते हैं, let's just start making a nucleus over here, ठीक है. एक इधर करके एक न्यूक्लियस बनाना शुरू कर देते हैं. तो अभी मेरे पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, राइट. जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसकी स्पेसिफिक बात ये है कि इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है. इजी, राइट. डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि एक इस पे इट्स नॉट जस्ट वन मेम्ब्रेन, इट्स 2 मेम्ब्रेन्स, ठीक है. एक तो ये मेरी ये बात होगी. अब इसके साथ साथ एक पॉइंट है विच विल एलैबोरेट मोर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अभी के लिए लेट्स जस्ट गेट इट इन आवर हेड, ठीक है. द आउटर मेम्ब्रेन
यानी कि जो उसका आउटर रीजन है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. What does that mean? It doesn't really make sense, right? अभी नहीं समझ आ रहा मुझे. Endoplasmic reticulum is just an organelle, ठीक है. And what I mean is that मेरे पास ना मेरा endoplasmic reticulum इसके इर्द गिर्द जमा हुआ बहुत है. This is a very rudimentary drawing, ठीक है, don't worry, ठीक है. एक तो ये बात है, और एक सेकंड पॉइंट ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, इधर से कर लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन ऑल्सो हैज़ राइबोसोम्स. व्हाट आर राइबोसोम्स, क्या हैं क्या नहीं है, अभी नहीं टेंशन करनी, ठीक है, डोंट वरी राइट नाउ. लेकिन आई हैव दिस स्मॉल राइबोसोम्स ओवर हियर, ठीक है. एक तो ये बात आ गई. आखिरी बात अब बहुत ऑब्वियस सी कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है मेरा एग्जिट और एंट्रेंस कंट्रोल करता है, बिकॉज वी जस्ट कांट लेट एनी, हर बंदे को तो नहीं हम घुसा सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वी नीड टू बी अ बिट सिलेक्टिव. सो दैट्स इट. इसके बाद लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट एन एडिशनल थिंग which is called the nuclear pore. The nuclear pores, ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा. So what these are really important. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास basically passage देते हैं हमें. They're basically doors, ठीक है. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह के ना डोर्स से बने हुए हैं छोटे छोटे हमारे डबल मेम्ब्रेन के अंदर. बहुत ज़्यादा होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेल, ठीक है. अगर सेल बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ दीज, ठीक है. बट डोंट वरी अबाउट दिस. इसको हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करेंगे कि व्हाट डज दिस मीन, प्रोटीन एक्टिव, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिलैक्स, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, ठीक है. ये मेरे पास बात होगी. पैसेज ऑफ, अब स्पेसिफिक एक वर्ड है, पैसेज ऑफ mRNA, मैसेंजर RNA. व्हाट इज़ दिस, कहाँ से आ रहा है, रिलैक्स, ठीक है. एक और इसकी स्पेसिफिक बात है, न्यूक्लियर एनवेलप में हमारे पास क्या होता है, हम क्लास 8 से एक बात पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पास DNA होता है. न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है. वी हैव DNA, राइट. अब DNA को हमने बाहर नहीं जाने देना. क्यों? क्योंकि अगर DNA यहाँ से मेरा बाहर निकल गया एंड इट गोज इन द सेल, देन सेल विल लिटरली डाई. वाई? बिकॉज जो हमारे पास हेड क्वार्टर्स में एक स्क्रिप्ट चल रहा है ना, एक मूवी चल रही है, वो जो स्क्रिप्ट है दैट्स द DNA, ठीक है. सो इफ आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, ठीक है, इफ आई डोंट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री विल कोलैप्स, ठीक है. सो इट्स बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स टेलिंग मी व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, ओके. एक तो ये बात होगी, ठीक है. आखिरी चीज़ जो मेरे पास है, एंड आई नो दिस इज़ अ बिट स्टूपिड डिटेल्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हैं इनको, ठीक है. मेरे पास 3000 इन नंबर होते हैं ये जनरली, ठीक है, कुछ में ज़्यादा भी होते हैं. और इनका जो डायामीटर है ना, इट इज़ 40 to 100 नैनोमीटर्स, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी 40 to 100 नैनोमीटर्स. सिंपल, राइट. नाउ दैट वी आर डन विद दैट, हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट्स गोइंग टू बी माई क्रोमेटिन. अब क्रोमेटिन क्या है, कहाँ से आता है? ओके, एक सेकेंड, अब स्टार्ट करो. Okay, so chromatin. What is chromatin? And when I was studying, I had a lot of confusion between chromatin, chromosomes, DNA. I was like, what the hell are these things? ठीक है. So relax. इसको ना 2 सेकंड में मैं समझाता हूँ, ठीक है. Chromatin is basically the name that I give to DNA plus associated proteins. Because DNA ऐसा नहीं कि just lying around, it's सोफ़ा पर बैठा हुआ है, आराम से फिर है. इट हैज़ टू बी, इट्स अ वेरी 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 सेंसिटिव मॉलिक्यूल दैट वी हैव टू कीप इन अ वेरी सेफ स्पेस. कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं फेंका हुआ तो नहीं होता ना, यू कीप इट रियली सेफ, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने गार्ड्स दिए हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, हिस्टोन्स वगैरह, दीज आर गार्ड्स, ठीक है. अब मेरे पास क्रोमेटिन है क्या, व्हाट इज़ क्रोमेटिन, एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स. बेसिकली जब मेरे पास सेल डिवीज़न होनी होती है ना, सेल डिवीज़न, तो मेरे पास जो क्रोमेटिन होता है, इट कंडेंसेस एंड देन इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स. एंड दे लव टू आस्क यू अबाउट दिस, ठीक है. इन योर AS they love to ask you, and I've even seen these questions कि वो AS की कोई छोटी सी बात पूछ लेंगे in your paper 4 in A2. So small things, just clear the concept.
सो क्रोमेटिन कंडेंसर्स मेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह में देखे होते हैं, कैरियोटाइप्स में देखे हुए होते हैं, लाइक दिस। खैर, अब मेरे पास द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट really important thing and really simple as well, ठीक है, don't worry about this, it's the nucleolus. अब nucleolus जो होता है हमारे पास, it's all that the nucleolus is that it's just a spherical region and there might be a number of them, there might be one, there might be two, ठीक है, it depends. और ये क्या करते हैं हमारे पास, दैट दे मेक rRNA. अब व्हाट इज़ rRNA? आई वॉज रियली कन्फ्यूज, RNA, mRNA, डोंट वरी राइट नाउ, ठीक है। दिस इज़ एन एंटायर टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर दैट विल टॉक अबाउट, ठीक है। लेकिन जस्ट ये बात समझ लो कि ये हमारे पास राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, ठीक है, रियली सिंपल. लेट्स जस्ट टेक इट अ बिट स्लो. नाउ दैट वी आर डन विद दिस, लेट्स जस्ट एनोटेट आवर डायग्राम ओवर हेयर, ठीक है. इट्स सॉर्ट ऑफ बैड लुकिंग, लेकिन इसको जल्दी से एनोटेट कर लेते हैं, ठीक है. न्यूक्लियर पोर्स हो गए. अब क्रोमेटिन जो होता है ना, क्रोमेटिन को इस तरह इमेजिन करने की कोशिश करो कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस थ्रेड्स, ठीक है. क्रोमोसोम्स में बहुत स्पेसिफिक किस्म के थ्रेड्स होते हैं ना, ये बेसिकली इनको इस तरह समझ लो कि देर जस्ट इस तरह के ना, देर जस्ट लाइंग अराउंड लाइक दैट, ठीक है. लेट मी मेक इट अ बिट स्मॉलर. इस तरह का जैसे थ्रेड्स होते हैं ना, देर जस्ट लाइंग अराउंड, ठीक है. यहाँ पे भी थोड़े से होंगे, इस तरह होंगे, ठीक है. अब हमारे पास न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलस इज लाइक दिस. ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है. सिंपल स्टफ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी. अब हमने एक आखिरी बात डिस्कस करनी है, एंड देन वी आर डन विद द ए लेवल कंटेंट, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द न्यूक्लियस के we've done the concepts. We are going to talk about the ratta material that you need to do for your FSC and your MDCAT and AKU and all of these things, ठीक है. Let's just quickly write the functions over here, right? Functions आसान से और हमने बहुत बचपन से किए हैं. The first thing is control center. We all know that. अब इंटरेस्टिंग बात ये है, now we can know कि कंट्रोल कैसे करता है. Basically through mRNA production and tRNA production, and lastly ये जो mRNA और tRNA और rRNA, all of these RNAs, you know what they do? They're basically involved in protein synthesis. अब मेरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, just try and understand that with me, okay? Protein synthesis. एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है. एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर एसेंशियली टूल्स, ठीक है. इन द सेम वे, या वर्कर्स आर अ बेटर टर्म, दे आर वर्कर्स. सो आई हैव अ फैक्ट्री. लेट्स से दैट मेरा पूरा जो सेल है, इट्स अ फैक्ट्री. आई नीड वर्कर्स इन इट. तो थ्रू माई प्रोटीन सिंथेसिस, through my mRNA, through my tRNA, I can determine, which workers do I have. Do I have basic wood workers? Do I have steel workers? Do I have engineers? Whatever I have. ठीक है, मेरे किस किस्म के एंजाइम्स बन रहे हैं, और उस हिसाब से फिर I can control the entire factory. So that is why the nucleus is the control center. And we are going to talk about this thing, ये जो भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, protein synthesis, this is pretty much 30% of AS chemistry. ठीक है, once you understand how this works, बहुत आसान हो जाएगा सारा, ठीक है. एक ये, सेकंड ये कि saves is a bad word, let's just go with protects. It protects DNA. Why does DNA need protection? I want you guys to understand this, ठीक है. अगर DNA मेरा corrupt हो जाए, do you know what I have? I have cancer. The cell starts to replicate repeatedly, uncontrolled, and it forms a mass, and that mass is cancer, ठीक है. तो it's really important to keep the DNA protected, ठीक है, कि उसमें एक भी चेंज ना आए. जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, उसमें एक भी लॉ चेंज ना हो. लॉ चेंज होगा तो माई एंटायर कंट्री विल गो इनटू अ स्टेट ऑफ एनार्की. सो आई नीड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, आई नीड टू प्रोटेक्ट द DNA. लास्टली, अब मेरे पास, इसको मैं इसी उसमें डाल देता हूँ. आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, इट ऑल्सो क्रिएट्स rRNA.
ठीक है, and also ribosomes, लेकिन ये सारा काम वही कर रहा है, this is protein synthesis, ठीक है. So this is what the nucleus is doing, and it's a really brief, it's just really the basic concept that you need detail for A levels, but for your exams for MDCAT, NUMS, AKU, you do need to go into all of that detail. So in the next video we'll be talking about all of that. And thank you so much. I hope you really liked this video, and please subscribe and do share it with your friends. This is my first video, and I hope you're here with me in the next videos as well. Thank you so much.